So we were discussing about the 10 offenses to the holy names of the Lord. हम चर्चा कर रहे थे भगवान के 10 नाम अपराधों के बारे में, और 10वां नाम अपराध है भगवान के दिव्य नामों के प्रति श्रद्धा नहीं रखना और उसको ध्यान पूर्वक नहीं करना और इस भौतिक आसक्ति को बजाय रखना. The 10th offense is to continue to have material attachments, and because of the material attachments, not be really attentively chanting the holy names of the Lord or putting faith on the chanting of the holy names of the Lord. We must understand that whatever comes to our mind, to our meditation during the chanting, is where our attachment is. Wherever whatever attachments we have actually comes out, surfaces out during chanting. That's why chanting is sometimes called by our acharyas as manthan, the process of really steering our mind. So while chanting, whatever comes out during your, or whatever is a distraction, we may say, oh, it's a distraction, but it's actually our attachments deep within our heart. So that's why the 10th offense is being told is to not have complete faith in the chanting of the holy names and to maintain material attachments even after hearing so many instructions on this matter. So starting from Bhagavad Gita, we have been hearing again and again that this material world is not the place of the living entity. Our original home is Sri Vrindavan Dham. We have to go back to Godhead. But still, we get attached to this world because of its illusory nature. It's a trap, and we get attracted and attached to this world. So we have been hearing again and again, but still if we maintain and we do not at least struggle to attentively chant the holy name of the Lord. Okay, we become inattentive, or there may be distractions, but the struggle is very, very important. We must understand that Bhakti Yoga is different than Ashtanga Yoga and Jnana Yoga. इन ज्ञान योगा, अष्टांग योगा, ज्ञान योग और अष्टांग योग में बहुत ध्यान पूर्वक जब आप मन निवेश करते हैं तभी आपको फल प्राप्ति होती है. यू गेट द रिजल्ट ओनली व्हेन यू आर completely in meditation. Like Ashtanga yogis, they're fully focused on the Brahman, and they try to focus on Paramatma. So they have to focus. In Bhakti Yoga, we are dependent on Krishna's grace, and Krishna is so merciful that even if we struggle, okay, our mind, because of all the attachments, is going here and there, but even if we struggle, that struggle itself is also counted by Krishna, and Krishna blesses all of us. And that's why it is important that whenever the mind goes here and there, it's that we must take it away from the attachments and bring back to the chanting of the holy names of the Lord. तो ये महत्वपूर्ण है कि हमारी मन जहाँ जहाँ आसक्त हो जाता है और इधर उधर भटकता है, उसको बार बार भगवान के नामों में लेके आना, और उसको करने के लिए हमको हर समय भक्तों के संग में जप करना बहुत महत्वपूर्ण है. जैसे रविवार हमें भक्तों के संग में जप करते हैं, पर ये महत्वपूर्ण ये भी है कि आप सब 2-3 लोग मिलके एक साथ जप कर सकते हैं सुबह सुबह बाकी दिनों में. Like Monday to Saturday, all of you can make small groups and chant together, because chanting together is very, very essential, very, very essential. So आपको अगर भगवान के दिव्य नामों को अच्छे से करना है तो एक साथ जप करना बहुत महत्वपूर्ण है. संगे शक्ति कलयुगे, एक साथ कलयुग में शक्ति मिलता है. तो ये मेरा एक सुझाव है, सजेशन है कि आप सब छोटा छोटा ग्रुप बना के एक साथ जप करने का कोशिश कीजिए हर दिन. हस्बैंड एंड वाइफ कैन सिट टुगेदर एंड चैंट.
एंड आप सबके कम्युनिटी में, कॉलोनी में जो भी भक्त हैं तो उनको बुला के एक साथ जप कर सकते हैं। जितना आप एक साथ करेंगे उतना देखेंगे आपका हरि नाम की क्वालिटी बढ़ेगा। जितना आप अकेले करेंगे देखेंगे योर माइंड विल स्टार्ट टेलिंग सो मेनी थिंग्स। तो ये जो रविवार रविवार हमारा प्रोग्राम है उसको भी सीरियसली लीजिए। हम देखे कि 3 महीना पहले जब हम चालू किए थे तो बहुत सीरियसनेस था। अभी धीरे धीरे सकालेने हनुमता योग नष्ट परंतप, धीरे 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 वीडियो ऑफ रह रहा है, लोग कहाँ गायब हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे ऐसे हो जा रहा है। तो ये स्वाभाविक है, ये भौतिक जगत में ऐसे स्वाभाविक है। कुछ भी चीज़ों को अगर आप बजाय नहीं रखेंगे तो नीचे चला जाता है। जैसे इसको अगर हम कुछ भी चीज़ें फेंकेंगे तो ऊपर से वो नीचे चला जाता है, और उसको ऊपर रखने के लिए आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू कीप द स्टैंडर्ड्स हाई देन वी हैव टू स्ट्रगल, राइट। तो ये मेरा निवेदन है कि बहुत मुश्किल से ये 5-15 का टाइम फिक्स हुआ है। आप ढीला मत मारिए, आलस मत होइए, और फिर से और एक भौतिक शरीर मत लीजिए। ऑलरेडी आपको भौतिक शरीर मिला है, कफ वात पित्त का शरीर, जिसमें इतना सारा समस्या है। यहाँ पे एक सुजोग मिल रहा है। श्रील प्रभुपाद जी हम सबको एक सुजोग, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आपको इस शरीर की बंधन से ऊपर उठ के भगवान की दिव्य नाम लेके भगवान की धाम में प्रवेश करना, और शाश्वत रूप से आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करना, आध्यात्मिक सेवा प्राप्त करना भगवत धाम में। और फिर पैदा होने की जरूरत नहीं और मृत्यु की जरूरत नहीं। तो ये एक श्रील प्रभुपाद जी हमारे लिए लेके आए हैं एक सुनहरा अवसर। और हम जो नालायक बच्चों की तरह बिहेव कर सकते हैं, जैसे आप सबके बच्चे होते हैं, आप उनको माता पिता बोलते हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, वो बच्चा पढ़ाई नहीं करता है और वो मशगूल रहता है खेलने कूदने में। ठीक है, पिताजी तो पैसा दे रहे हैं खेलने कूदने में, पर फिर क्या होता है, एग्जाम आता है। एग्जाम जब आता है तो बच्चा फेल हो जाता है। तो उसी तरह आचार्य लोग, हर आचार्य लोग क्या बोलते हैं, हरि नाम करो हरि नाम करो, हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो भाई रे, हरि नाम आनी अच्छे चैतन्य निताई रे। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु हरि नाम लेके आए हैं, आप करो 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 करो, और ये शरीर को छोड़ो, ये भौतिक जगत को छोड़ो, भगवान के धाम जाओ। और हम भी उस तरह का नालायक बच्चे हो सकते हैं। और क्या करें, ठीक है प्रभु जी बोल रहे हैं अच्छे से जप करना चाहिए, ये बोल रहे हैं अच्छे से जप करना चाहिए, ठीक है, फिर भी मन को थोड़ा सुन लेते हैं। तो क्या होगा जब एग्जाम आएगा, और एग्जाम क्या है, जीवन की एग्जाम मृत्यु है। मृत्यु के बाद फिर से और एक शरीर, अभी आपको एक शरीर मिला है, फिर और एक शरीर मिलेगा। ऐसे शरीर, कितना शरीर हमको मिला है। तो ये हमारा निवेदन है कि आप भगवान की दिव्य नामों को ध्यान पूर्वक कीजिए, यही आपकी मुक्ति का कारण होगा और यही आपको भगवत धाम प्राप्त करवाएगा। और कुछ नहीं है। जो भी हम करते हैं, क्लास देते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, इतने सारे इस्कॉन में प्रोग्राम होता है, सारे प्रोग्राम का जो सार है वो ये है कि ध्यान पूर्वक सबको जप करवाना। तो ये अगर हम नहीं कर रहे हैं तो सारे इस्कॉन के जितने हमारे सारे प्रोग्राम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सब बेकार हो जाएगा हमारे जीवन में, अगर हरि नाम को हम प्रतिदिन ध्यान पूर्वक करने का कोशिश नहीं करेंगे, स्ट्रगल नहीं करेंगे। So the 10 offense is actually to be attentive and to really keep away from the material attachments. And more we really struggle to do that, to be remaining attentive. More and more we will see that Krishna's mercy will awaken in our life. And again, we do not have to take birth, and we will get a spiritual body at the end of life, and we can enter Sri Vrindavan Dham. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। श्री हरि नाम प्रभु की जय।